I appreciate the opportunity to address the distinguished participants of this conference call as we gather to discuss the performance of Vaishali Pharma Limited during the Q2 financial year 24. It's indeed an exciting time to reflect on our achievements and milestones. Before we dive into the details of our performance, let me provide a brief overview of our company and our business model. Vaishali Pharma Limited, established in 1989 in Mumbai, is a pharmaceutical company that specializes in manufacturing and marketing a diverse range of healthcare products. Our product portfolio includes API, formulations, surgical products, veterinary supplements, herbal items, nutraceuticals, and oncological products. We cater to healthcare needs of both humans and animals. While we have a strong presence in Maharashtra, India, we have also expanded to reach globally through strategic partnerships. Vaishali Pharma Limited has established collaborations in the Democratic Republic of Congo, Kenya, and Russia, allowing us to distribute their pharmaceutical products in this region. One notable partnership involves Sankalp Lifecare, a prominent nutraceuticals manufacturer. We have entered into a strategic alliance with Sankalp Lifecare to manage the marketing operations of Sankalp Lifecare's products, both domestically and internationally. This collaboration enhances their ability to promote and distribute health supplements produced by Sankalp Lifecare on a global scale. At Vaishali Pharma, our dedicated team is focused on creating various healthcare products, including pharmaceutical formulations, APIs, surgicals, veterinary, herbal, and nutraceutical products. Our goal is to bring unique value to patients worldwide. With decades of experience in pharmaceutical marketing and exports, we collaborate with multiple manufacturing facilities across India. Our operations extend to international markets encompassing formulation, surgical, and API manufacturing facilities, ensuring compliance with WHO GMP guidelines. In each manufacturing unit, we have dedicated quality control teams to ensure the high quality of our products. Over the years, we have successfully manufactured and exported more than 250 formulations, specializing in tailor-made healthcare solutions. We have started working in the nutraceutical product area, and the ongoing collaborations and partnerships are going to be important for our future growth. Our vision at Vaishali Pharma is clear: to be recognized as a prominent Indian multinational in the pharmaceutical and healthcare industry. We are driven by a mission to actively contribute to the well-being of society by delivering high-quality products and services. Our core values include a commitment to total quality management, providing excellent customer support, building enduring trust in business relationships, and demonstrating respect for all individuals. Embedded in our business ethics is the Vaishalian Code of Conduct, which upholds values such as integrity, customer focus, innovation, passion, productivity, and adaptability. We ensure compliance with the regulatory requirements of different countries, navigating their rules and documentation. As suppliers of APIs to renowned companies approved by multinationals and major Indian corporations, we offer competitive rates for formulations. The quality of our product is the core of our business. The quality products at competitive rates offer us huge growth opportunities for seeking orders from multinational companies. Further, our research and innovation will strengthen our position in contract manufacturing. With a well-structured supply chain management system, we consistently deliver on time, fostering substantial growth in our customer base over the years. We are happy to share the results for the H1 financial year 2024.
Our success comes from innovative ideas, our high quality standards, and expanding global reach through important partnerships. Now let me take you through the financial performance in quarter 2 financial year 24 and half yearly financial year 24. The total revenue for H1 financial year 24 stands at 26.65 crores with a noteworthy EBITDA of 5.62 crores and an EBITDA margin of 21.11%. We achieved a net profit of rupees 3.29 crores, resulting in a net profit margin of 12.34%. EPS is reported at rupees 3.10. For quarter 2 financial year 24, the total income is reported at 12.86 crores, accompanied by a notable EBITDA of rupees 2.95 crores and a commendable EBITDA margin of 22.97%. Our net profit for this quarter stands at rupees 1.70 crore, resulting in a net profit margin of 13.24%. The EPS is recorded at rupees 1.61. Our quality product and cost efficiency enabled us to earn such an impressive margin in the reported year. Going forward, we are optimistic about EBITDA margin with upward bias. In the end, I want to express sincere gratitude to all our stakeholders for playing a crucial role in our journey of growth. Your support and faith played a pivotal role in our success. Now, I welcome you to share any questions or thoughts you may have. Thank you once again for your presence and continued support. Thank you so much. We will now begin the question and answer session. The first question is from the line of Prakash Jaiswal from Shri Capital. Please go ahead. Hello, good afternoon, sir. Thanks for the opportunity. Sir, we have the presence of 35 plus location and exports to various countries. So how does company planning to further expand its market reach? प्रकाश जी, अगला डाउन द लाइन हम लोग 45 to 46 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा सबका प्रोसेस चालू है, अभी ऑलरेडी चालू है, हमारा रजिस्ट्रेशन चालू है. कुछ टाइम के बाद अगले 1.5 साल में वो सब स्टार्ट हो जाएंगे सब कंट्री. ओके सर, सर अभी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेल्स का कंट्रीब्यूशन कैसा है रेवेन्यू में अपने? 40-60. या. Okay. And sir, are there any identified risks or challenges in the industry that company is actively addressing? सर अभी वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस तो काफी जगह पे है सर. हम लोग म्यांमार में है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेबनान में है या रशिया में है, लेकिन सर इतनी ज्यादा कंट्री है, कहीं कोई जगह पे हमारा ज्यादा वेटेज नहीं है, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. Okay. And sir, any specific milestone or goal company aims to achieve near term in future? 400 to 500 करोड़ का हमारा अगला 5 साल में प्लानिंग है सर, या वहां तक पहुंचने का. Okay. And sir, can you sir provide insight on specific goal and growth exception from the strategic alliance with the Sankalp Life Care? सर संकल्प के साथ जो टाई अप है वो बहुत ही बढ़िया है. संकल्प है वो एक यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट है और उसका जो न्यूट्रास्यूटिकल जो रेंज है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. और अभी हम लोग जो पूरा मार्केटिंग है उसका जो टोटल मार्केटिंग है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट वो अभी वैशाली फार्मा संभाल रहे हैं और डे बाय डे वो इंक्रीजिंग है. यहाँ पे हर जगह पे हमें अप्रूवल्स मिलते जा रहे हैं. अभी सर हमारा मटेरियल यूके अप्रूव हो गया है, यूएस में भेजा गया है, वहां से अप्रूवल आ रहा है. ग्रेजुअली सर होता बढ़ रहा है और ये जो स्ट्रेटेजिक आप जो अलायंस जो बता सकते हैं जो पार्टनरशिप है वो सर कमिंग ईयर्स में एक नए लेवल पे होगा. ओके. एंड सर एनी कैपेक्स वी आर लुकिंग फॉर इन नियर टर्म? कैपेक्स नियर ईयर नहीं सर, बट वी कैन से विद इन से बाय 2-3 years we'll be looking out to acquire a factory.
Okay, like inorganic growth. Yeah. Okay. Thank you, sir. I will get back into you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Participants may press star and 1 to join the question queue. The next question is from the line of Chinmay Rane from Cogent Finvest. Please go ahead. Hello. Yeah, thank you for the opportunity. So you just mentioned that in the next 3 to 4 years, your target is to reach the 500 crores of the revenue. So what are the strategies you are doing it? Any product pipeline, any tie-ups, any acquisition? What are the strategies to achieve those kind of a target which you are looking at? या मैडम, अभी हमारा 350 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और कम से कम 200 प्रोडक्ट और रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं डाउन द लाइन 1 साल में। और ये सब प्रोडक्ट हमको जो उसका रिजल्ट आता है कम से कम 3 साल के बाद आता है। अच्छा। तो हम जो हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमको ये सब चीज अपने आप हो जाएगी। और कई जगह अभी हम लोग ने टेंडर डालना भी चालू किया है, तो टेंडर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ओके। तो हम जो हिसाब से मैम नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि डाउन द लाइन कुछ ना कुछ टेंडर भी लग जाएंगे और बाकी हमारा जो प्रोडक्ट कंटिन्यू डाल रहे हैं, एक सिस्टम बन के डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आना चालू हो गया है। ओके सर, ये टेंडर हमने किधर सबमिट किए हैं, इन डोमेस्टिक कंट्री और वेयर? मैडम कैन यू प्लीज कम अगेन? ये जो टेंडर आप बोल रहे हो वो कहाँ सबमिट किए हैं हमने? इंटरनेशनल मैडम। इंटरनेशनल। अफ्रीका में कुछ डाले हुए, कुछ यूरोप में डाले हुए, उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। या। अच्छा, जो हम लोग ये एपीआई और जो सिंह में हम लोग ने वेरियस वर्टिकल में हम प्रेजेंस करते हैं, तो उसमें से मेजरली हम लोग कौन से डिसीज को टारगेट करते हैं? मैडम आप रिपीट कर सकते हो? नहीं, हमने जो इतने सारे वर्टिकल्स में जो हमारा प्रेजेंस है, तो हम मेनली कौन से डिसीजेस को टारगेट करते हैं? हमारे को टारगेट करते हैं। यस, एंटीबायोटिक, डायबिटिक्स, एंटी कैंसर, हर एक टाइप के प्रोडक्ट जनरली हम लोग करते हैं। उसमें से मेनली हमारा एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स में हम लोग। ओके, और जो हमारा ये जो टाइप है संकल्प के साथ, वो मेनली मार्केटिंग टाइप है, राइट? मार्केटिंग टाइप है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में। ओके, तो वो हम हमारे ब्रांड के अंदर बेचेंगे या कैसा है ये? हम लोग वैशाली की ब्रांड पे बेच रहे हैं मैडम। सॉरी? वैशाली फार्मा की ब्रांड पे बेच रहे हैं। वैशाली की फार्मा के ब्रांड। या। ओके सर, हम अभी काफी सारे प्रोडक्ट, आपने कहा काफी सारे डेवलपमेंट में, तो हमारी रिसर्च की टीम क्या है, मतलब टीम साइज क्या है? हमारे पास 6 रेगुलेटरी में है, 6 लोग रेगुलेटरी में है। ओके। और एक टेक्निकल उसको बोलते हैं टेक्निकल ऑफिसर है मेरे पास, जो काफी सीनियर है, और वो सबको हैंडल कर रहा है ये सबको। ओके सर, और हम यूनाइटेड नेशन में ट्राई कर रहे हैं कि कोई कोशिश कर रहे हैं एंट्री करने की? यूनाइटेड नेशन में ओनली न्यूट्रास्यूटिकल, इन फार्मा इट्स वेरी टफ। न्यूट्रास्यूटिकल में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, और ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता होगा अपने टोटल रेवेन्यूज पे? नहीं, अभी तक हुआ नहीं। ओके, ये नहीं हुआ अभी तक हुआ नहीं। ओके, और आपने कहा अराउंड 350 to 375 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है, विच इज एंड दैट विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. या। ओके सर, आई कम बैक इन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to join the question queue. The next question is from the line of Ankit Kumar, who is an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, Ankit ji. So my question is, considering the financial result for H1 FY24, what factors contributed to the notable EBITDA margin of 21.11% and net profit margin of 12.34%?
Yeah. So can you repeat your question? Hello, sir. हेलो. हाँ. Can you repeat your question, sir? ओके. सो एक्चुअली जो आपका जो ये एबिटा मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 21.11% है और 12.34% है, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे इसके पीछे? सर इसमें हमारे लिए इसमें जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है, एपीआई का कंट्रीब्यूशन है, सर्जिकल का कंट्रीब्यूशन है. मेजरली कंट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स का है कि जो ये करता है ये, और जिसकी वजह से ये एबिटा पे हम लोग आए हैं. और जैसे मेरे ओपनिंग स्पीच में भी बताया सर, ग्रेजुअली ये इंक्रीज ही होगा और बहुत अच्छे उससे होगा. ओके सर. तो ये जो मार्जिन है, जो मार्जिन लेवल्स है, तो ये मेंटेनेबल है या फिर फ्यूचर में ये मतलब इंक्रीज होगा? और सर ये सस्टेनेबल तो है ही, ये पॉइंट पे ये जो है वो ये सस्टेन तो है ही और ये इंक्रीज ही होगा. सर इसमें कैसा रहता है कि ब्रांड वैल्यू होता है, एक स्टेज पे वो ब्रांड डेवलप हो जाती है, फिर इसमें जो एबिटा मार्जिन है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होने के बजाय. ये नॉर्मल ट्रेडिंग और सेल्फ ब्रांड जो खुद का ब्रांड होता है उसमें ये डिफरेंस होता है. हमारा खुद का ब्रांड रहता है तो वो ब्रांड में ये इंक्रीज होता है. ओके सर. तो और मतलब कौन कौन से जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आप लेने वाले हो फ्यूचर में टू गेन दी सस्टेनेबिलिटी? सर जो स्टेप्स वो तो सर अभी भी ले रहे हैं और आगे भी लेने वाले हैं. तो गेन द सस्टेनेबिलिटी के सर अभी जो मेजर जो फैक्टर आता है इसमें जो सर टाइमली डिलीवरी आता है कि जिसके हिसाब से हमें रिपीट ऑर्डर्स आते हैं वही प्रोडक्ट के. और उसके अलावा सर हम वहाँ पे प्रमोशंस भी करते हैं इन दोज कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रमोशनल मटेरियल भी बेचते हैं साथ में, to increase or to create awareness and to increase our market share in those regions. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much. The next question is from the line of Ketan Athavale from Robo Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity. Firstly, I wanted to know कि ये जो क्वार्टर है अभी लेटेस्ट क्वार्टर और FY23 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग से कितना है और मार्केटिंग से कितना है स्प्लिट रेवेन्यू? आपने किसमें पूछा सर, मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग एक्टिविटीज से रेवेन्यू स्प्लिट क्या है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और ये ट्रेडिंग में से आप ऐसा बता रहे हो ना? सर इसमें आप रेशियो गिन सकते हो कि ऑलमोस्ट 50-50 हो सकता है. 50-50 है ऐसा. 50-50 मतलब 50% ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड रेस्ट इज फ्रॉम मार्केटिंग. यस. दिस इज फॉर FY23 और Q2 FY24. सर Q2 FY24 गिनिए या वो गिनिए, हम लोग अभी यही लाइन पे चल रहे हैं एंड ग्रेजुअली वी गो टू 60-40, विल टर्न इट टू 60-40. यही हमारा ट्राई है. आज से 10 years पहले सर हम सिर्फ मार्केटिंग में थे, ग्रेजुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए एंड धीरे धीरे हम लोग ये जो हमारा जो कंपनी का शेयर है वो 50-50 अभी ये लेवल पे आ गए कि 50-50 हो गया है. एंड ग्रेजुअली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग साइड का शेयर बढ़ा रहे हैं और मार्केटिंग का शेयर में ग्रेजुअली वो हो रहा है. ओके. तो ये 60% कब तक अचीवेबल है? सर कह सकते हैं कि वेरी सून, और हम लोग उसी टूवर्ड्स जा रहे हैं कि मे बी ये नेक्स्ट H2 में हो सकता है ये, या आप गिन सकते हो कि उसके फर्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में भी वो अचीव हो सकता है. ओके, गॉट इट. और इन फरवरी हमें एक 600 करोड़ का ऑर्डर मिला था ये फरवरी में, जिसका आपने नोटिस डाला था NSE. तो वो बेसिकली मार्केटिंग ऑर्डर था क्या कि क्या? नहीं सर, नहीं, इस एक्सपोर्ट ऑर्डर वो भी एक टेंडर है सर. वो टेंडर हमको लग चुका है. वो टेंडर में हमारा कंडीशन है एडवांस पेमेंट का, और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए वो अटक के पड़ा है. हम लोग आज भी हम लोग पेपर वर्क ये वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके पीछे बराबर लगे हुए हैं. ओके ओके. सो मतलब एनी क्लैरिटी कब तक आ सकता है वो? और वो 600 करोड़ आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करेगा फिर?
पूरा पूरा कंपनी का स्टाइल ही चेंज हो जाए सर। इट्स अ बिग ऑर्डर कंपनी के लिए। जो 80-90 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी को अगर 600 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो इट्स बिग, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली वही था। सो बेसिकली फिर आप मतलब क्या कब से आ सकते हैं वो, कुछ आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हो आप? सर एक्सपोर्ट में कई बार ऑर्डर हमको 6-8 महीने में क्लिक होता है, कई बार 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। हमको इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद अगले साल तक कुछ, यानी अगले 6 महीने में कुछ चांसेस है। ओके। और हम लोग कंटिन्यू बोर्ड में जो भी होता है इंप्लीमेंट करते रहते हैं। या ओके। एंड आपने 400 to 500 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है विद इन नेक्स्ट 3 or 4 years। तो इमीडिएट टर्म गाइडेंस क्या होगा इन FY 24 and 25? ऑलमोस्ट 18 to 20% का ग्रोथ से हम चल रहे हैं। सडनली कोई बड़े ऑर्डर आ गए, टेंडर लग गया तो बात अलग है, अदरवाइज हम लोग ये इसको मेंटेन करते चल रहे हैं। ओके। एंड अच्छा मतलब ये जो 400-500 दिस इज विदाउट कंसिडरिंग दैट 600 वाला ऑर्डर? यस सर, तो अगले साल हो गया। या दैट इज, हाँ राइट। Okay, got it. And just one last question. Can you give any update on pending trade receivables? हेलो सर। ट्रेड रिसीवेबल्स पे कुछ अपडेट दे सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल्स सर ऑलमोस्ट सब साइकिल्स में ही चल रहे हैं एंड दे आर ऑल रियलाइजेबल ऑन द रेगुलर बेसिस एज पर देयर ड्यू डेट। Okay. Thank you so much. Yes. Thank you so much. The next question is from the line of Hemant Shah, who's an individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity. First of all, हेमंत भाई, अपना रिजल्ट थोड़ा डाउन था ये बार, Q1 H1 दोनों, तो मेजर फैक्टर क्या थे उसके पीछे? सर कैन यू प्लीज कम अगेन? मैं ये बोल रहा हूँ अपना रिजल्ट थोड़ा डाउन था, तकरीबन 14 करोड़ से अपन तकरीबन 13 करोड़ के आसपास आ गए। एबिटा भी अपना 3.25 करोड़ के आसपास से 3 करोड़ हो गया। पैट भी तकरीबन 2 करोड़ से 20-25 लाख रुपए नीचे हो गया और मार्जिन में भी थोड़ा स्क्वीज था। तो मेजर फैक्टर क्या था ये Q2 के परफॉर्मेंस में? सेम H1 में भी अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यूड रहा था, तो क्या मेजर रीजन था उसके लिए? सर ऐसा है, कई बार ऑर्डर हमारे पास होते हैं लेकिन मैन्युफैक्चर साइड से माल बन के आने में लेट हो जाता है। हमारा कम से कम 22 साइड पे माल बन रहा है। कोई जगह पे माल हम लोग क्यू में लग जाते हैं और एक साथ में सब माल बेचना है तो हमको वेट करना पड़ता है। माल लेके गोडाउन में रख देते हैं लेकिन माल एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है और कोई रीजन नहीं होता है। और आजकल थोड़ा मार्केट में ये भी है सर, वोर का टाइम पे पैसा, एडवांस पैसा नहीं आता है तो हम लोग माल बनाने में भी थोड़ा लेट करते हैं। ओके। तो सर अभी H2 का सिनारियो क्या है? अभी जो रिमाइंडर अपना जो बचा है FY 24, तो अपना तकरीबन मोटा मोटी कितना ऑर्डर बुकिंग अपने हाथ में है? और अपन लास्ट ईयर का जो अपना टॉप लाइन वगैरह है वो अपन क्रॉस कर पाएंगे? तकरीबन अपन लास्ट ईयर तकरीबन 72 करोड़ के आसपास थे और अराउंड 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो ये अभी H2 अपना बेटर रहेगा उससे, तो अपना परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से बेटर हो जाएगा? तो क्या सिचुएशन है? सर काफी बेटर रहेगा सर। हमारे पास कम से कम 15 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन में ऑलरेडी ऑन हैंड है। ओके। और आगे जाके ये ईयर पूरा होते होते हम लोग इससे काफी लास्ट ईयर से बेटर रहेंगे सर। ओके सर। और अभी जो अपन नया न्यूट्रास्यूटिकल का जो अपन ने वर्टिकल चालू किया है, तो उसमें अपन क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि सेम अभी अपन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे करवा के वैशाली के ब्रांड में बेच रहे हैं, क्या उसमें कोई प्रोडक्ट में अपन अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग या उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ?
तो उसमें क्या सिनेरियो आप देख रहे हो? सर ये जो भी प्रोडक्ट है हम लोग वैशाली के ब्रांड में ही बेच रहे हैं और वही हमारा वो थिंकिंग है। अभी हम लोग सर डोमेस्टिक में भी लॉन्च करने जा रहे हैं और मार्केट प्लेस में अभी हम लोग कुछ ना कुछ जगह पे हेल्दी करके वैशाली फार्मा का ब्रांड है, वो ब्रांड से हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और मार्केट प्लेस में वो भी अवेलेबल है और ग्रेजुअली डाउन द लाइन हम लोग इसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो डोमेस्टिक भी हम लोग चालू कर रहे हैं और दोनों साइड से कर रहे हैं सर, एक ऑनलाइन भी कर रहे हैं और एक डोमेस्टिक सप्लाई भी किया है, डोमेस्टिक सप्लाई भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में कर ही रहे हैं सर। एक्सपोर्ट में सर क्या होता है कि अप्रूवल आते हैं, उसमें थोड़ा टाइम जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट होता है और ये नॉर्मल मेडिसिन तो है नहीं सर, इसमें टेस्ट और अप्रूवल आते हैं तो इसमें सब में डिटेलिंग में जाता है तो जो टाइम लगता है वो थोड़ा लग रहा है, बाकी सर आगे बहुत बढ़िया से बढ़ रहे हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अपन नहीं कर रहे हैं, अपन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं अपने वेंडर से। यस सर, आपने शायद इसके पहले में मैंने आंसर किया था यही कि 2 years 3 years डाउन द लाइन हम लोग एक ये एक्वायर करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट, मतलब अभी अपना वही मॉडल पे चल रहा है जो अपने दूसरे एपीआई वगैरह में चल रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है। ओके। और सर अभी अपना मेजर फोकस कौन से वर्टिकल पे रहेगा? एपीआई पे, फॉर्मुलेशन पे, न्यूट्रास्यूटिकल किस पे मतलब मेन फोकस रहेगा? मेजर का फॉर्मुलेशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके। और सर एक मतलब आप मार्जिन प्रोफाइल बता पाओगे? लेट से एपीआई में कितना परसेंटेज EBITDA बन रहा है, फॉर्मुलेशन में कितना बन रहा है और न्यूट्रास्यूटिकल से अपन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि आपका मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होने का चांस है, तो मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन से वर्टिकल से अपना मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा। सर इसमें ऐसा है, मैक्सिमम मार्जिन फॉर्मुलेशन से मिलता है। जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वो कंट्री में चालू होना है, चालू होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं क्योंकि उसमें कंपटीशन कम होती है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे ज्यादा मार्जिन उसमें होता है, जितना वो बिजनेस बढ़ता है इतना मार्जिन बढ़ता है। बाकी सब आइटम में एपीआई में उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं रहता, लेकिन फॉर्मुलेशन सबसे ज्यादा मार्जिन रहता है और 15% से लेकर 40% तक मार्जिन हो सकता है इसमें। तो उसके लिए हमारा मार्जिन का जो रेशियो डाउन लाइन जो ऐसा जो बॉटम लाइन बढ़ रहा है वो बिकॉज ऑफ फॉर्मुलेशन। ओके। और सर न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रहेगा प्रोफाइल उसमें? न्यूट्रास्यूटिकल एपीआई से बेटर रहेगा? सर सर दोनों हमारे लिए न्यूट्रा और फार्मा एक ही कैटेगरी में आता है। ओके, तो मार्जिन में दोनों सेम ही रहेगा सर। गॉट इट। और सर अभी अपना सबसे ज्यादा एक्सपोजर कौन सी कंट्री में रहेगा? अभी अपन तकरीबन 30-35 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका ज्यादा अपना अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका में, और उसमें भी पर्टिकुलरली कोई कंट्री सर जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर रहेगा अपना? सर सॉरी मैं ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन इतने लोग हैं इसमें सर। कोई दिक्कत नहीं, नो इशू सर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अफ्रीका अपना मेजर फोकस ही है और कोई दिक्कत नहीं है। और वियतनाम और म्यांमार में अपना मतलब वियतनाम में जैसे अपना ऑफिस भी है, तो वहाँ पे अभी अपन कैसे एक्सपांड कर रहे हैं? सर वहाँ पे हम लोग ने काफी कुछ प्लानिंग किया हुआ है, लेकिन सर अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं हुए उधर। हमने केन्या में भी किया है सर, वहाँ पे सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे वियतनाम में सक्सेस नहीं हुआ इधर, लेकिन म्यांमार शुरू हो गया है। ओके। तो अभी आगे जाके मतलब ऐसे अभी कंटिन्यू करे तो सेम वे अफ्रीका अभी भी प्राइमरी रहेगा, फिर इंडिया का थोड़ा बहुत आएगा या कुछ सिनेरियो चेंज होगा? यस। ओके। सर प्राइमरी स्टार्ट किया था अफ्रीकन रीजन से, ग्रेजुअली सर गल्फ में भी है, लैटम में भी है, CIS में भी है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है और ग्रेजुअली वैसे प्रेजेंस बढ़ा था। स्टार्टिंग में सर 3-4 कंट्री से चालू किया था, 1 कंट्री से, 2 कंट्री से, 4 कंट्री से, फिर सर ग्रेजुअली जैसे जैसे वो टेस्ट आने लगा सर अब, तो वैसे और जैसे जैसे अच्छे फैक्ट्रीज के साथ टाइप होने लगा, तो वैसे हम लोग सर आगे दूसरे स्टैंडर्ड में बढ़ने लगे। सही बात है। तो अभी जैसे अफ्रीका से अपना सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है,
तो कंटिन्यू रहेगा। और इंडिया में अभी अपन क्या सिनेरियो सोच रहे हैं? तो इंडिया अफ्रीका को ओवरटेक करेगा या अफ्रीका ही अभी भी अपना प्राइमरी मार्केट रहेगा? सर प्राइमरी मार्केट तो अभी ये गिन सकते हैं कि अभी अफ्रीकन रीजन ही रहेगा, और डाउन द लाइन जैसे ही न्यूट्रास्यूटिकल भी एक बार ऑन गोइंग हो जाता है, पाइपलाइन में आ जाता है, तो यूरोपियन लैटिन अमेरिकन कंट्री भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। Thank you. Participants may press star and 1 to join the question queue. The next question is from the line of Agam Shah, who is an individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Quick question. You said, I think I missed your initial remarks and I joined in late. So pardon me. Can you give a guidance for broad how we seeing company 2 to 3 years down the line in terms of top line and EBITDA margins, and any capex will require for reaching that number? Sir, gradually we are going with 18 to 20% growth every year. So we expect minimal change in that, कि उसमें थोड़ा कुछ बढ़ सकता है या जो है वो नॉर्मल चेंज हो सकता है वो। बाकी हम लोग कंपनी 18 to 25% के ग्रोथ से आगे बढ़ने का प्रोजेक्शन करके चल रही है। और जो आपने बताया कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई रहेगा ये नीड सफाइज करने के लिए, तो सर नहीं, ये ग्रोथ के लिए सर हमें कोई भी कैपिटल या कोई भी कैपेसिटी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। और आपने बताया कि 2-3 इयर्स डाउन द लाइन आप क्या सोच रहे हो कंपनी के बारे में, तो 2-3 इयर्स डाउन द लाइन सर हम लोग कंपनी में ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइट एक्वायर करने का प्लानिंग है, वो सोच रहे हैं कि वो वर्टिकल में भी आगे जाए। और जो एसेट लाइट मॉडल पे अभी हम काम कर रहे हैं, तभी शायद हमें इतनी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर आप बोल सकते हो कि एनी टारगेट कि इतना रेवेन्यू करना है बाय दिस ईयर और एनीथिंग इफ यू वुड लाइक टू शेयर? सर लास्ट ईयर से ये कंपेयर करें तो 20% ग्रोथ पे हम अभी देख रहे हैं कंपनी को कि 20% ग्रोथ पे कंपनी जाएगी ये साल तक। ओके, एंड बाय 26 और 27 एनीथिंग इन माइंड? शुड इट सर दैट विल बी टू अर्ली टू कमेंट, पर सर ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी अतुल सर ने भी बताया कि 5 years डाउन द लाइन 500 करोड़ का सर वो करना है, तो वो एक ड्रीम है सर, वो कैसे अचीव होगा वो भी बताया कि कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर होपफुली वो हिसाब से ग्रोथ आ जाएगा सर। ओके, एंड मार्जिन तभी यही रहेगा कि बढ़ेगा? सर मार्जिन ग्रो होता है इसमें, जैसे ही रिपीटेड ऑर्डर जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता है, वैसे खुद का ब्रांड होने के उसका जो फायदा है वो यही है कि इसमें ब्रांड कम वॉल्यूम के साथ मार्जिन कम नहीं होता है, मार्जिन बढ़ता है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Participants may press star and 1 to ask the questions. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Ms. Chandni Chande for closing comments. Thank you everyone for joining the conference call of Vaishali Pharma Limited. If you have any queries, you can write to us at research@kirinadvisors.com. Once again, thank you for joining the conference. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.